جنسی طاقت، جسمانی طاقت، عمر 50 سال کے آگے پیچھے، جسمانی طاقت، مرد و خواتین میں خوش رہنے کا طریقہ، بہترین زندگی سے لطف اٹھانے کا طریقہ، ایسی خوراک جو آپ کو دیر تک صحت مند جمع رکھے، ذہنی صحت۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ شبیر سامٹیا اور آپ دیکھ رہے ہیں کمپلیٹ ہیلدی ٹپس۔ اگر آپ کی عمر 50 سال یا 60 سال کے قریب ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ اگر آپ کی عمر 35 سال سے اوپر ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ آپ اس ویڈیو کو دیکھیں، اس سے وہ خوراکیں استعمال کریں جس سے آپ 70 سال کی عمر تک ہیلدی لائف گزار سکیں، اپنی لائف سے بھرپور لطف اٹھا سکیں۔ ایسے لوگ جن کو دل کی تکلیف ہے، ہارٹ پیشنٹ ہیں، جو دل کی متواتر دوائی لیتے ہیں، یا دل کا پرابلم رہتا ہے، یا شوگر کا ایشو ہے، شوگر کی دوائی لے رہے ہیں، یا شوگر کا خطرہ ہے، ایسے لوگ جن کو بلڈ پریشر کا پرابلم ہے، بلڈ پریشر کا ایشو ہے، یا کوئی کسی اور ایسی کرونک پرابلم کی متواتر دوائی لے رہے ہیں، تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے اس پرابلم کو مینٹین کرنے کے لیے، اس پرابلم کے سلوشن کے لیے جو ڈاکٹر کی ادویات لے رہے ہیں وہ باقاعدگی سے لیں اور باقاعدگی سے چیک اپ کروائیں۔ آپ کی جسمانی صحت، آپ کے جو یہ مین پرابلم ہے، ان کا سلوشن دوائی میں ہے، ڈاکٹر کے پاس ہے، آپ کی ذہن کی سوچ کے ساتھ ہے۔ سب سے پہلی بات، آپ دیر تک ہیلدی رہنا چاہتے ہیں، صحت مند رہنا چاہتے ہیں تو اپنی ورزش کو عادت بنائیں۔ ورزش سے یہ مراد نہیں ہے کہ آپ میلوں کے حساب سے دوڑیں، میلوں کے حساب سے پیدل چلیں۔ کچھ نہ کچھ جو بھی آپ ورزش کے طور پر ایکٹیویٹی کرتے ہیں وہ ضرور کریں۔ اپنے آپ کو تھوڑا بہت موومنٹ میں رکھیں، چلنے پھرنے میں رکھیں، ایک طرف جگہ بیٹھ کر ٹائم نہ گزاریں۔ سارا دن ایک ہی جگہ بیٹھ کر، ایک کمرے میں رہ کر، ایک کرسی پہ بیٹھ کر ٹائم نہ گزاریں، بلکہ اپنے آپ کو حرکت میں رکھیں، موو کرتے رہیں کسی نہ کسی بہانے سے، کسی نہ کسی کام سے، اور اپنے ان پرابلم کو، ہارٹ کو، شوگر کو، بلڈ پریشر کو مینٹین رکھیں ڈاکٹر کی گائیڈنس کے مطابق، ڈاکٹر کی رائے کے مطابق۔ میں وہ خوراکیں آج آپ کو بتاتا ہوں جس سے آپ اپنی زندگی کا بھرپور لطف اٹھا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر کی رائے سے یہ خوراک ضرور، ڈاکٹر سے مشورہ ضرور لینا اس چیز کا، کیونکہ یہ ایسی چیزیں ہیں جو بے ضرر ہیں، لیکن بعض اوقات ایک عام سی چیز بھی دوسرے آدمی کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ چیز اس آدمی کے لیے مضر ہو سکتی ہے۔ جس طرح دودھ کسی آدمی کو ہضم نہیں ہوتا، جس طرح شوگر والے پیشنٹ کے لیے میٹھی چیز مضر ہے، اسی طرح ہارٹ پیشنٹ کے لیے چکنائی والی چیزیں مضر ہیں۔ تو ہمیں سب سے پہلے ڈاکٹر کی گائیڈنس پہ عمل کرنا ہوگا۔ سادہ خوراک لیں۔ سادہ خوراک جو ہے وہ بہترین ٹانک ہے دیر تک صحت مند رہنے کا، دیر تک معدے کو تندرست رکھنے کا، دیر تک جسمانی اور ذہنی طور پر فٹ رہنے کا۔ ذہنی طور پر سب سے زیادہ بات یہ ہے کہ فٹ رہنے کے لیے اس عمر میں کچھ نہ کچھ دیر ذکر کیا کریں، نماز کی عادت ڈالیں، اور اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں۔ ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کریں جو کسی کا گلہ نہ کریں، نہ موسم کا، نہ صحت کا، نہ جسم کا، نہ مہنگائی کا، نہ حکومت کا۔ ایسے لوگوں کے ساتھ کمپنی کیا کریں جو شکر گزار ہوں اور انرجیٹک ہوں، جن میں آگے بڑھنے کا، کچھ کر گزرنے کا، ہمت والے نوجوان جذبے جن میں پروان چڑھ رہے ہوں۔ ایسے لوگوں کی صحبت آپ کو تندرست رکھے گی، ذہنی طور پر بھی، جسمانی طور پر بھی۔ تو یہ دیکھتے ہیں کہ کھانے میں کیا لینا چاہیے ہمیں، وہ کون سی خوراکیں ہیں جو ہم استعمال کر کے
इस उम्र को भरपूर तरीके से इंजॉय कर सकते हैं। उसमें है गोभी, बंद गोभी। ये बंद गोभी और फूल गोभी, ये इसको हम सलाद के तौर पर कच्चा भी खा सकते हैं, पका के भी खा सकते हैं। इसी तरह है अंडा। अंडे को हम बॉयल करके ले सकते हैं, आमलेट बनाकर भी ले सकते हैं। अब ये रही बात कि भी अंडा कुछ मरीजों के लिए तो बहुत खतरनाक है। जी, दिल का मरीज के लिए अंडा बहुत नुकसानदेह है, दुरुस्त है। इसी तरह हाई ब्लड प्रेशर वाले मरीज के लिए अंडा बहुत नुकसानदेह है। लिहाजा ये खुराकें अपने डॉक्टर की राय से लें। मछली अक्सर लोगों के लिए मुफीद है। हार्ट पेशेंट भी ले सकता है, शुगर वाला भी ले सकता है, और कोलेस्ट्रॉल वाला भी ले सकता है। इसी तरह बहुत सारे लोगों के लिए मछली जो है ना बहुत मुफीद है। मछली हफ्ते में 3 बार 2 बार हर कीमत खानी चाहिए, लेकिन मछली गर्म नहीं होती। मछली को जिस तरीके से हम तैयार करते हैं वो तरीका हमारा मछली को गर्म बना देता है। अखरोट इस उम्र में जो है ना 35 साल से ऊपर लोगों के लिए अखरोट अनमोल चीज़ है। अखरोट आपको देर तक सेहतमंद जमा रखती है और आपके दिमाग को फ्रेश रखती है। इसी तरह अखरोट के साथ आप लेंगे केला। अगर आपको शुगर का इशू नहीं है तो केला आपके लिए बहुत मुफीद है। केला बेहतरीन टॉनिक है, आपको देर तक सेहतमंद और यंग रखने का। अदरक का पानी, अदरक का पानी हो, अदरक सालन में हो, अदरक का कहवा हो, अदरक चबाना हो, ये हर हिसाब से बहुत मुफीद है। इसी तरह लौंग भी बहुत मुफीद है। लौंग को अपने खानों में शामिल करें। दालचीनी का कहवा, दालचीनी का पाउडर दही में डालें, दालचीनी का कहवा लें, दालचीनी को सालन में डालें, दालचीनी को रोटी में डालें, ये बहुत मुफीद है। काले चने बहुत सुपर टॉनिक किस्म की फूड है। बेसन की रोटी या काले चने बॉयल करके लें, सालन पका के लें, भून कर लें, ये ज़बरदस्त है। ये तमाम चीज़ें अपने डॉक्टर की नोटिस में दें। क्या मैं इनमें से ले सकता हूँ? डॉक्टर जो बताएगा उसके मुताबिक लें। अगर आपकी को दिल का प्रॉब्लम है या शुगर का इश्यू है या ब्लड प्रेशर है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो अपने डॉक्टर की राय से ज़रूर ये उनकी नोटिस में देना कि मैं ये चीज़ यूज़ कर लूँ। ज़हनी सेहत के लिए आमतौर पे इस उम्र में लोगों के अंदर खौफ, किसी किस्म का अनजाना खौफ, किसी रिलेटिव की शरारत का खौफ, कारोबार के लॉस का खौफ, किसी बीमारी का खौफ, किसी मुखालिफ का खौफ, इसको जहन से निकालें। जो कुछ है उस मालिक के हाथ में है। जब हमारा ज़ात उस खुदा की ज़ात पर कामिल यकीन हो जाता है कि वो ही मेरे लिए बेहतर करने वाला है, वही मेरा कारसाज है, तो खौफ फिर ख़त्म हो जाता है। थोड़ा सा यकीन अपना मालिक पर पुख्ता कर लें। और जिस्मानी कमज़ोरी के ख्यालात आना कि पता नहीं मैं अज़वाजी ताल्लुक़ में कैसे रहूँगा, औरत कहती है मेरी पता नहीं सेहत कैसी है, मैं अब किस काबिल हूँ, मुझसे ये हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा। जिस्मानी ख्यालात को, ज़हनी ख्यालात को मुस्बत रखें, नौजवान रखें। अपने ख्यालात को अच्छे तरीके से अच्छी बातें सोचें, सेहत वाली बातें सोचें, खुशी वाली बातें सोचें। मनफी ख्यालात को दिमाग में ना आने दें। मनफी लोगों से परहेज़ करें। ऐसे लोग जो हर वक्त गिल्ला गुमाजी, शिकायत, चाहे वो मौसम की कर रहे हों, चाहे किसी फ़र्द की कर रहे हों, चाहे वो महंगाई की कर रहे हों, चाहे किसी हुक्मरान की कर रहे हों, चाहे किसी मशीन की कर रहे हों, चाहे किसी ख्याल की कर रहे हों, तो शिकायत करने वाले लोगों से की कंपनी से परहेज़ करें। गिल्ला, शिकायत, गीबत गोई, ये नुकसानदेह है, सुनने वालों के लिए भी, करने वालों के लिए भी, दिमाग के लिए भी, कानों के लिए भी। आप कहेंगे कि ये कैसे, एक आदमी आया है वो बात सुना रहा है, हमने सुन ली। देखिए, अगर किसी के मुंह से बहुत बुरी स्मेल आ रही हो या जिस्म से बहुत बुरी स्मेल आ रही हो, तो कितनी देर आप उसकी कंपनी को बर्दाश्त करेंगे? आप तंग हो जाएंगे, नाक बंद कर लेंगे, उठ के चले जाएंगे। इसी तरह जो आदमी शिकवे शिकायत करने वाला है, गीबत करने वाला है, वो किसी की गीबत आपके सामने कर रहा है, आपकी गीबत किसी और के सामने करेगा। ऐसे लोगों की महफिल से गुरेज करें, मर्द हो या औरत। जो किसी का गिला सुनाने में, सुनाने में खुश हो रही हो, किसी की मौसम की भी चाहे बुराई हो, चाहे महंगाई की भी बात हो, चाहे हुकूमत की भी बात हो, बुराई, खामी, शिकायत
दुख, ऐसी चीज़ों से बचे रहेंगे तो देर तक आप सेहतमंद, जिस्मानी तौर पर सेहतमंद रहेंगे, ज़हनी तौर पर सेहतमंद रहेंगे। आप कहते हैं ज़हनी तौर पर सेहतमंद रहने का जिस्म के साथ क्या ताल्लुक़ है? मैं कहता हूँ ज़हन हमारा सेहतमंद होता है तो बॉडी हमारी सेहतमंद होती है। उस वक्त हम बीमार होते हैं, उस वक्त हमें प्रॉब्लम होती है जब हमारा ज़हन प्रॉब्लम का शिकार होता है। तो अपने ज़हन को नौजवान रखें, सेहतमंद रखें और आप भरपूर अपनी लाइफ से इंजॉयमेंट लेंगे, अपनी लाइफ का भरपूर मज़ा लेंगे तब जब आपके ख्यालात मुस्बत होंगे। अपने आप को हर वक्त जवां महसूस करें, सेहतमंद महसूस करें, हिम्मत वाला महसूस करें, अपने आप को एनर्जेटिक महसूस करें और लोगों के बातें, दुख, गम, शिकायत वाले लोगों से परहेज़ करें। वो खुराक खाएं जो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेहतर है। इस सिलसिले में एक अहम चीज़ मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ कि छुहारे दूध में बॉयल करके खाना, पर वो दूध पी लेना, ये बहुत बेहतरीन टॉनिक है। इसी तरह किशमिश मूड को बूस्ट करती है। किशमिश सुबह को भगो कर रखें, शाम को खा लें, ऊपर एक गिलास या एक कप नीम गर्म दूध का पी लें, ये बूस्ट करती है, सुबह को खाएं। इसी तरह रात को बादाम भगो के रखें, सुबह खा लें, ऊपर एक नीम गर्म दूध का गिलास पी लें, ये बूस्ट करता है। लेकिन ये तमाम चीज़ें अपने डॉक्टर की राय से लें। थैंक्स। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर और ज़रूर करना।